بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، آسمانی صحیفے مٹ چکے تھے اور اللہ کے کلام میں تحریف واقع ہو گئی تھی اور اس کی شریعت کو بدل دیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے زمین ظلمت و تاریکی کے بعد روشنی سے جگمگا اٹھی، دلوں پہ نفرت و دوری کے بعد محبت و الفت نے جگہ لے لی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، راہ راست کی طرف رہنمائی کی، دین حنیف میں پیدا ہونے والی کجی کو دور کیا اور صراط مستقیم کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اور آپ کی اتباع کو ہدایت اور کامیابی کا ضامن اور آپ کی نافرمانی کو ضلالت اور شقاوت کا سبب قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین رسالت، افضل ترین کتاب اور آخری شریعت دے کر بھیجا، اور ان کے ذریعے بندوں پر حجت قائم کر دی اور ان کے سارے عذر ختم کر دیے، اور آپ نے اپنے رب کے پاس سے وحی کا ایسا نور لایا جس میں ہر قسم کی تاریکی کا خاتمہ ہے، مردہ دلوں کے لیے زندگی ہے، ارشاد ربانی ہے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اور حق و خیر کی طرف تفصیلی رہنمائی وحی کے بغیر ناممکن ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی، اس سے پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا، ہم اپنے بندوں میں جسے چاہیں اس روشنی سے راہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و سنت دونوں کی وحی کی، اور اپنے بندوں پر یہ واجب قرار دیا کہ وہ ان دونوں پر ایمان لائیں اور ان میں موجود تمام امور پر عمل کریں۔ قرآن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے تمہارے رفیق نہ تو راہ بھولے اور نہ بے راہ چلے، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی طرح وحی ہے جسے آپ کے پاس جبریل امین لے کر آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سلف کا اتفاق ہے کہ یہاں حکمت سے مراد سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اقوال و افعال میں غلطیوں سے معصوم بنائے رکھا اور انہیں دشمنوں کی چال سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اسلام کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو اس کے برخلاف ہرگز کوئی بات نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا پیغام پہنچانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اپنی ساری امت کو ان کے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ سے اس قدر واقف کرایا مانو کہ وہ اللہ کو اس کے صفات کمال اور اوصاف جلال کے ساتھ دیکھ رہے ہوں اور مشاہدہ کر رہے ہوں۔ انبیاء اکرام، ان کی قوموں، ان کے واقعات اور ان کا انبیاء کے ساتھ جو سلوک و رویہ رہا ان سب کو اپنی امت سے اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گویا کہ وہ ان کے درمیان ہو، نیز انہیں خیر و شر کے چھوٹے بڑے تمام راستوں سے اس قدر روشناس کرا دیا کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی نے اپنی امت کو اس قدر روشناس نہیں کرایا تھا۔ انسانی عقلیں اللہ کی مراد تک پہنچنے سے قاصر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی تفسیر اور شرح ہے۔ سنت ہی سے قرآن کے مجمل مقامات سمجھ میں آتے ہیں، یہی تفصیلی احکام کا ماخذ
माखज है, इसी के मुताबिक कुरानी आयत की तफसीर की जाती है। इरशाद बारी ताला है, ये जिक्र यानी किताब हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है आप उसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। इब्न हज़्म रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कुरान में कुछ जुमले ऐसे हैं कि अगर उन्हें हमारे लिए छोड़ दिया जाता तो हमें पता नहीं चलता कि उन पर अमल कैसे करें। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ना होती तो कोई भी मुसलमान न नमाजों की रकात की तादाद जान पाता, न ज़कात की मिकदार, न उसे हज और उम्रा का तरीका पता होता, न खरीदो फरोख्त और शादी ब्याह के हकाम का पता होता, और न ही दीन की दीगर तफसीलात का इल्म होता। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबऊस फरमाया तो हम कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ हम वही काम करते जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखते। एक आदमी इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के पास आया और किसी चीज के बारे में सवाल किया। जब वो उसके बारे में बतलाने लगे, उस आदमी ने कहा, अल्लाह की किताब के हवाले से बयान कीजिए और किसी दूसरी चीज के हवाले से बयान मत कीजिए। इमरान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तुम अल्लाह की किताब में ये पाते हो कि ज़ोहर की नमाज 4 रकात है, उनमें जहरी क़िरात नहीं होगी, इसी तरह नमाजों की तादाद, ज़कात की मिक़दार वगैरह वगैरह। फिर कहा, क्या तुम्हें ये सब चीजें अल्लाह की किताब में तफसीली मिलती हैं? बेशक अल्लाह ने उन सब चीजों को मुजमलन बयान किया है और सुन्नत नबवी उनकी तफसील बयान करती है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कुरान की तफसीर करती है, उसकी तफसील बयान करती है, उसकी वजाहत करती है और उसका मतलब बतलाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस अक्ल और उसूल के मुवाफिक है। अहादीस का इनकार उस आदमी की अक्ल नहीं कर सकती जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दीनी हैसियत का इल्म हो जो अल्लाह ने आपको अता किया है, और इस बात का इल्म हो कि अल्लाह ने लोगों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाजिब करार दी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस आदमी का दिल कभी मुतनफ्फिर नहीं हो सकता जो आपकी हर बात की तस्दीक करे और हर हुक्म की पैरवी करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज का भी हुक्म दिया है या जिस चीज की भी रहनुमाई की है उस पर अमल करना तमाम लोगों पर वाजिब है, और जिस चीज से भी रोका है या डराया है उससे इज्तनाब वाजिब है। इरशाद बारी ताला है, और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया व आखिरत की हर भलाई लेकर आए और दीन की तफसीर के लिए अल्लाह ताला ने मखलूक को आपके अलावा किसी और का मुहताज नहीं बनाया। आपने अपनी उम्मत को अपनी सुन्नत की हिफाजत और उसे तमाम लोगों तक पहुंचाने पर उभारा है ताकि उससे हुज्जत कायम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मौजूद गायब को पहुंचा दें, क्योंकि बहुत से लोग जिन तक ये पैगाम पहुंचेगा सुनने वालों से ज्यादा पैगाम को याद रखने वाले साबित होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है और गुनाह माफ होते हैं। इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करो, और अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इंसान ईमान की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की तस्दीक व यकीन से उसका दिल मामूर न हो जाए, बिला झिझक आपके हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम न कर दे, और आपने जिन चीजों की खबर दी है उनको तस्लीम करते हुए अपने दिल में कोई हरज और तंगी महसूस करना न छोड़ दे। इरशाद बारी ताला है कि मोमिन तो वो है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर पक्का ईमान लाए, फिर शक व शुबहा न करें और अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद करते रहें, यही सच्चे और रास्तगो हैं। इंसान पर वाजिब है कि अपने तमाम मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो जाए। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरते रहा करो। इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यानी उनसे पहले किसी चीज में सबकत न करो बल्कि तमाम उमूर में उनके ताबे व फरमाबरदार बन जाओ। बल्कि एक बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होगा जब तक वो दीन के हर छोटे और बड़े मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, सुन्नत और जो कुछ आपने लाया है उन सब को हाकिम न बना ले। साथ ही साथ आपके फैसले को इंशराह सदर के साथ कबूल करे, उसके मुतालिक दिल में किसी तरह की तंगी महसूस न करे और उनके हर हुक्म के सामने पूरी तरह सरे तस्लीम खम कर दे। इरशाद बारी ताला है, ऐ मोहम्मद, तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि वो अपने तनाजुआत में तुमको हकम तस्लीम ना कर लें, फिर तुम जो फैसला करो उसके मुतालिक अपने दिलों में घुटन भी महसूस ना करें और उस फैसले पर पूरी तरह सरे तस्लीम खम कर दें। हुज्जत के एतबार से कुरान और सुन्नत दोनों एकसा और बराबर है। जो उन दोनों में तफरीक करे और ये गुमान करे कि दीन के मामले में कुरान ही उसके लिए काफी है, तो उस शख्स की तरह है जो कुरान की बाज बातों पर ईमान रखता है और बाज का इनकार करता है, इसलिए कि उनमें से एक की पैरवी दूसरे की पैरवी है। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में बाहम कभी भी इख्तलाफ नहीं होता, जिस तरह कुरान करीम की आयतें आपस में मुतारिज नहीं होती। इरशाद बारी ताला है, और अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो उसमें बहुत सारे इख्तलाफ पाते। लिहाजा हर वो चीज जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म
हुक्म फरमाया है या जिससे मना किया है, ये उसी तरह है जिस तरह अल्लाह ने हुक्म फरमाया है या रोका है। इरशाद नबवी है, अनकरीब तुम में का कोई मुझे झुटलाने की कोशिश करेगा, वो अपनी मसहरी पर तकिया लगाए हुए बैठा हुआ होगा, उसे मेरी हदीस सुनाई जाएगी तो वो कहेगा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला की किताब ही काफी है। हम जो चीज इसमें हलाल पाएंगे उसे हलाल समझेंगे और जो उसमें हराम पाएंगे उसे हराम समझेंगे। जान लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी चीज को हराम करार देना अल्लाह ताला के हराम करार देने की तरह है। इमाम अहमद ने इसे रिवायत किया है। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सुन्नत मुतहरा की हुज्जियत और शरई कानून साजी में मुस्तकिल हैसियत नागुज़िर दीनी जरूरत है। इसका इनकार वही शख्स कर सकता है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खुलाफाए राशिदीन किसी की भी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फौकियत नहीं देते थे। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी आदमी के कौल की वजह से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तर्क करने वाला नहीं हूँ। इसी दुरुस्त मनहज पर उलमाए रब्बानी अमल पैरा रहे। इमाम शाफई रहमहुल्लाह कहते हैं कि मुसलमानों का इजमा है कि जिसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाज़ेह हो जाए उसके लिए जायज नहीं कि उसे किसी के कौल की वजह से छोड़ दे। इत्तिबाए रसूल के वाजिब होने पर सारे अइम्मा का कतई इत्तिफाक व इजमा है। जिस शख्स ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी कौल या फ़िल या अक्ल या क़ियास की बिना पर एतराज किया तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ताज़ीम व तौक़ीर नहीं की जिसे अल्लाह ने उस पर वाजिब करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला ताकि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी इज्जत करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो। बेशक जो लोग आपसे बैत कर रहे हैं वो अल्लाह ही से बैत कर रहे हैं और जो एराज करते हुए या उस पर किसी दूसरी चीज को तरजीह देते हुए सुन्नत को तर्क करता है वो सख्त वईद का मुस्तहिक हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे तरीके से बेरगबती की वो मुझ में से नहीं है। बुखारी मुस्लिम। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कुरान में जिस निफाक का तज़किरा है इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुरूज है। हुक्म नबवी की मुखालफत दुनिया व आखिरत की रुसवाई का बाइस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिल्लत व रुसवाई उसका मुकद्दर बना दी गई है जो मेरे तरीका की मुखालफत करे। इमाम अहमद ने इसे रिवायत किया है। नीज ये नुकसान और बुरे अंजाम का बाइस है। इरशाद बारी ताला है, और जो शख्स अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान न लाए तो हमने भी ऐसे काफिरों के लिए दहकती आग तैयार कर रखी है। जो आदमी सुन्नत नबी से एराज करे या तकब्बुर करते हुए उस पर अमल करने से एराज करे या आपके कलाम और शरीयत में शुकूक व शुबहात पैदा करे या अक्ल ख्याल और हवा परस्ती की बिना पर एतराज करे तो क़यामत के दिन वो अपने किए पर कफे अफसोस मिलेगा। इरशाद बारी ताला है, जिस दिन उनके मुंह आग में उलट दिए जाएंगे, कहेंगे ऐ काश हमने अल्लाह और रसूल का कहा माना होता। जिस शख्स को किसी काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म हो जाए फिर वो जानबूझकर उसे छोड़ दे तो ये दिल की खमीदगी और कजी की अलामत है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस चीज के बारे में मुझे इल्म हो जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे क्या करते थे तो मैं उस पर अमल करना कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे खदशा है कि अगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क कर दिया तो मैं राह रास्त से भटक जाऊंगा। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। हर वो काम जो सुन्नत नबवी के खिलाफ हो उसमें बंदे के लिए कोई खैर व भलाई नहीं है। सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक वो मीज़ान और कसौटी है जिस पर चीजों को पेश करके परखा जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सीरत, वो किरदार और आदत पर। तो जो उनके मुवाफिक होगा वही हक और सच होगा और जो उनके बरखिलाफ होगा वो बातिल और मरदूद होगा। सुन्नत नबवी को मजबूती से थामने और तमाम हालात में उसी से जुड़े रहने और चिपटे रहने से ही लोग इज़्तिराब व बेचैनी के घटाटोप अंधेरों से निकल सकते हैं। फितनों और लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफ के वक्त सीधी राह पर कायम रहना भी इसी पर मुनहसर है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहा वो बहुत सारे इख्तिलाफात को देखेगा, चुनांचे उन हालात में मेरी सुन्नत और मेरे खुलाफा की सुन्नत को अपनाए रखना। खुलाफा जो अस्हाब रुश्द व हिदायत है उनकी सुन्नत को खूब मजबूती से थामना, बल्कि डाढ़ों से पकड़े रखना, नई नई बिदात व इख्तिरात से अपने आप को बचाए रखना। यकीनन हर नई बात बिदात और हर बिदात गुमराही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदों को जन्नत की तरफ बुलाने वाले थे। जैसा कि कुछ फरिश्तों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हुए कहा कि उनकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने एक घर बनाया और वहाँ खाने की दावत की और बुलाने वाले को भेजा। बस जिसने बुलाने वाले की दावत कबूल कर ली वो घर में दाखिल हुआ और दस्तरखां से खाया, और जिसने बुलाने वाले की दावत कबूल नहीं की वो घर में दाखिल नहीं हुआ और दस्तरखां से खाना भी नहीं खाया। फिर उन्होंने इसकी तफसीर बयान करते हुए कहा कि घर जन्नत है और बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत करेगा, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे और बुरे लोगों के दरमियान फर्क करने वाले हैं। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला ने अपने बाद सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को काबिल इत्तिबा करार दिया है। जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और आपकी सुन्नत की पैरवी की उसके लिए जन्नत का वादा है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इनकार करने वाले लोग कौन है? फरमाया कि जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो उसी ने इनकार किया। इमाम बुखारी ने इसे रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले पहले उस परिंदे के बारे में भी अपनी उम्मत को जानकारी दे दी है जो आसमान में अपने परों से उड़ता रहता है। उन्हें सोने, उठने, बैठने, खाने पीने से लेकर क़ज़ाए हाजत तक के आदाब भी सिखलाए हैं, और उनके लिए अर्श इलाही, कुर्सी, आसमान, फरिश्ते, जिन्नात, जन्नत और जहन्नम और रोज़ क़यामत को ऐसी वजाहत के साथ बयान किया है जैसे इंसान अपनी आंखों से देख रहा हो। रोज़ क़यामत बंदों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछा जाएगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशक्क़तों, मुसीबतों और दावती सरगर्मियों से भरपूर बाबरकत जिंदगी गुजारने के बाद हज्जतुल विदा के मौके पर लोगों को मुखातब करते हुए फरमाया, और तुमसे रोज़े क़यामत मेरे बारे में सवाल होगा तो तुम क्या कहोगे? उन सब ने अर्ज किया कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया और रिसालत का हक अदा कर दिया और उम्मत की आपने खैर खाही कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाते और लोगों की तरफ झुकाते हुए फरमाया कि अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। 3 बार यही फरमाया और यूं ही इशारा किया। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार ने भी गवाही दी कि आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है, और उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत नहीं आई जब तक बंदों पर आपकी हुज्जत कायम नहीं हुई। इरशाद बारी ताला है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया। मुसलमानों, दीन इस्लाम की असल बुनियाद अल्लाह वहदहू की तौहीद और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की एक साथ गवाही देना है। दोनों में से एक की गवाही दूसरी से किफायत नहीं करेगी। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तुम अल्लाह और उसके रसूल और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया। और बंदा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही में उसी वक्त सच्चा तस्लीम किया जाएगा जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे और मुकम्मल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे फरमान बन जाए। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, जिसने रसूल की इताअत की दर हकीकत उसने अल्लाह की इताअत की। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जिस निफाक का कुरान में तज़किरा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक निफाक रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल शरई हुज्जत और दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तरीका दीन है जिसे बतौर दीन अपनाया जाएगा, और कब्रों में लोगों से आपके मुतालिक सवाल किया जाएगा और आपके जरिया ही उनका इम्तिहान लिया जाएगा। मैं शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करे तो ये उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, नबियों, सिद्दीकों और शुहदा व सालिहीन में से, और ये लोग अच्छे साथी हैं। ये फजल अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह काफी है, सब कुछ जानने वाला। अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए कुरान अजीम में बरकत दे और उसकी आयतों, हकीमाना नसीहतों को हमारे और आपके लिए मुफीद बनाए। मैं अपनी बात यहीं से खत्म करते हुए अपने लिए और आप सबके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, यकीनन वो बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, उसके एहसानात पर, और हर तरह का शुक्र है उसकी तौफीक और इनामात पर। मैं अल्लाह ताला की अज़मत शान का एतराफ़ करते हुए गवाही देता हूँ कि उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। बेशक दुरूद व सलाम नाज़िल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और सहाबाए किराम पर। मुसलमानों, अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लो क्योंकि ये उसकी मजबूत रस्सी है, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताज़ीम व तौक़ीर करो और तालीमात नबविय्या को लाज़िम पकड़ो। उसी में फिक्री बेराह रवी से तुम्हारी हिफाजत है। इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमारे उलमाए सलफ फरमाया करते थे कि सुन्नत को मजबूती से थामने में ही नजात है। कायनात का कोई भी शख्स पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से बेनियाज नहीं हो सकता, और रूए ज़मीन पर बसने वाले इंसान सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ही मुहताज व ज़रूरतमंद है जैसे वो खाने पीने के मुहताज है, बल्कि उससे भी बढ़कर। और अहले ज़मीन की बका उसी वक्त तक है जब तक उनमें सुन्नत नबवी मौजूद है। आखिरी ज़माने
زمانے میں جب روئے زمین سے پیغمبروں کے آثار و نشانات مکمل طور پر مٹ جائیں گے تو اس وقت عالم علوی و سفلی سب تہس نہس ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد بالی تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش برساتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے سارے جہانوں کے پالنہار، تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو، وہ اللہ جو عظمت و جلال والا ہے، اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔